Sachin, please confirm. Just a second. Okay, start. Thank you. So, very good morning to one and all present here. First of all, I request all the non-speakers to keep their mic on mute. Let the speaker complete the session, and we will have a separate question and answer round at last. So, I, Abhishek Sharma, on behalf of Chaudhary Charan Singh National Institute of Agriculture Marketing, welcomes you all to the Kisan Mitra webinar series on agriculture technology for marketing, organized by National Institute of Agriculture Marketing in partnership with Principal Scientific Advisor, Government of India. National Institute of Agriculture Marketing, NIAM, Jaipur is an autonomous organization established under Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India to cater various agriculture aspects such as training, research, consultancy, education in agriculture marketing, etc. CACS NIAM is also recognized as a globally as a center of excellence in Southeast Asia. Kisan Mitra Friends of Farmers is an initiative by Principal Scientific Advisor in partnership with National Institute of Agriculture Marketing Jaipur. The objective of the initiative is to bring technologies to farmers and reverse migrants who have moved rural due to impact of COVID-19. Under this initiative, more than 1,000 technologies have been identified, which are supported by ICR institutions, NABARD, Ministry of Rural Development, ISRO, and Gates Foundation, etc. On the supply side of the technology, there are innovators, entrepreneurs, researchers, academicians, and research institutions talking about their technology, and the webinar participants being on the demand side, who are typically agribusiness companies, government functionaries, farmers, agribusiness, other agribusiness stakeholders who are keen in agribusiness technologies. So moving further, I would like to introduce our today's speaker, Mr. Dhyan Dev Atkari, Managing Director, Kukadi Crop Science Private Limited. He's a MSc Agri in Genetics and Plant Breeding. He has completed Export-Import Diploma Certificate course, Agri-Clinic and Agri-Business Certificate course from Manage. He also worked in IMT and Pro Farm Private Limited, Pune at various positions. He also worked as a Senior Scientific Officer at ICRISAT Hyderabad in pearl millet breeding and hybrid parents development. He has also published a book entitled Characterization of ICRISAT breed pearl millet restore, Restora parents. He is an expert in data analytics for hybrid feed and performance. He has published posters on fodder biomass production of pearl millet. So, I would like to invite Mr. Dhyan Dev to take a session on silage smart climatic food. Over to you, Dhyan Dev. You can share your screen and start the session. Thank you. Yeah. So everybody can see the shared screen. Yes, yes, it is visible. So good morning, all of you. Myself, Mr. Akhil Nandev. Presently, I am working as a Managing Director of Food Crop Science Private Limited. Today's topic of our webinar is silage smart climate. So first of all, actually, what is the silage? Silage means I request participants to keep their mic on mute. Sachin, can't please mute their mics. so shall we start? Yeah, please. So silage, basically silage is a unfermented product. So fermentation during its tenure, it is an anaerobic condition. क्योंकि होता है कि अगर आपको Sachin, just 1 second. Sachin, can you please make all the mics mute? Hello. Yes, I think it's all mute. Please proceed. so silage is a product, silage is an anaerobic fodder product. So it will be uh, processed in an anaerobic process. So in the process of silage making, there should be no any oxygen contact of oxygen or contact of air, you can say. So in silage can store up to 24 months. So basically, what is the product? I will explain slide by slide. This is a just short outline of a silage. So our company name is Sukri Crop Science Private Limited. Our location site is
located at Maharashtra. I will give you the detailed postal address at the end of our presentation. I will. It is very good morning all of you. Uh, हमने जो इसके लिए ट्रेनिंग लिया था वो एक हमारा सेंटर इंक्यूबेटर सेंटर था, एसकेएन एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर जॉबनेर, और उसके लिए जो इंफॉर्मेशन के लिए उनसे उसमें एक नेशनल इंस्टीट्यूट हमें दिया गया था, सीसीएस नियम जयपुर का एक उसका। अभी एक स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाएंगे। तो बेसिकली बिजनेस शुरू करने से पहले हम मार्केट में उसके लिए सर्वे करते हैं। तो सर्वे के दौरान हमने कुछ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए थे। जो प्रॉब्लम्स हमने आइडेंटिफाई किए थे उसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा मैं अभी। तो डेफिसिट ऑफ 11% इन ड्राई फॉडर। अगर हमने ड्राई पाउडर की अगर ये इसमें दिखा रहे हैं तो हमने इसकी लाइफ ये भी देखनी चाहिए कि उसमें कितना परसेंट कॉस्ट बढ़ता है अगर हम उसको फीड करते हैं। तो 60 to 70% इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑन लाइफ का फीड। अगर हम एक जानवर से दूध प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो उसमें 60 to 70% इन्वेस्टमेंट कॉस्ट अपनी फीड के ऊपर चली जाती है। देखा था ड्राई जो होता है वो 11% की डिफिशियंसी है और ग्रीन पाउडर की डिफिशियंसी 56% की डिफिशियंसी है। तो ये जो होता है, अगर हमने इसमें देखा जाएगा कि फॉडर जो है वॉल्यूमिनस प्रोडक्ट होता है। आप इसको अगर कट करके ट्रैक्टर में भर के लेके आते हो तो एक दिन में आप कितना ज्यादा से ज्यादा खिला पाओगे, आप इसको स्टोर नहीं कर पाओगे क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ड्राई हो जाएगा। तो इसके दो तरह की समस्या होती है। एक तो वॉल्यूमिनस होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आ जाता है। दूसरी समस्या ये हो जाती है कि अगर आप इसको एज इट इज ग्रीन स्टेज में रखोगे तो उसमें फंगस और बैक्टीरिया कंटामिनेशन करके वो खराब हो जाता है। तो उसको आप एक तो 12 के अगर हमने कंसिडर कर दिए, ईयर में 12 महीने कंसिडर कर लिए, तो उसमें से ज्यादा ज्यादा 6 to 8 मंथ्स ग्रीन फॉडर अवेलेबल रहेगा। आपको बचे हुए 4 महीने के लिए आपको ड्राई फॉडर यूज करना पड़ता है। लेकिन पहले से ही देखा जाएगा तो ड्राई फॉडर की जो आपकी डिफिशियंसी वो 11% है और ग्रीन फॉडर की डिफिशियंसी जो है 36% है। तो दूसरा एक ऑप्शन बचता है कि जो अपने जानवर है उनको कोई खुले जंगल में या कहीं ना कहीं उसको ग्रेजिंग के लिए छोड़ दे। लेकिन ओवर ग्रेजिंग अगर हो जाएगा तो उसमें से समस्या ये निर्माण हो जाती है कि वो जो लैंड है उसकी इरोजन हो जाती है। अब ये सारे प्रॉब्लम फेस करने के बाद अपना अल्टीमेट लॉस ये हो जाता है कि अपने इंडिया का अगर हमने एवरेज देखा मिल्क यील्ड की, अगर हमने डेली एनिमल की अगर ये चेक किया है तो इसका 1600 केजी का पर एनिमल का एवरेज यील्ड है। जो कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया देखे, ब्रिटेन देखा, यूएस देखा, जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पे ये तकरीबन आपको 3600 केजी से 5700 केजी तक इसकी यील्ड मिल जाती है। तो अगर कंपेरेटिवली देखा जाए तो हम इनका एक हिस्सा ये अपने 3 हिस्से इसमें लॉस हो रहा है। तो अगर ये सारे प्रॉब्लम्स है तो ये प्रॉब्लम के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन भी ढूंढना होगा। तो उसके लिए हमने क्या सोल्यूशन ढूंढा है, वी विल सी इन नेक्स्ट स्लाइड। So what are solutions we are providing to farmers? So we are providing farmers ready-made feed. So we call that silage. So silage is a balanced diet, explore genetic potential, maintains FCR ratio. I will explain what is the genetic potential of animal and what is the FCR ratio. Genetic potential means अगर आपके पास कोई भी एक गाय है, उसकी दूध देने की क्षमता अगर 25 से 30 लीटर पर डे की है, बट वो पुअर न्यूट्रिशन के कारण, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ फॉडर के कारण दूध कम दे रही है, तो आप अगर उसको अच्छा बैलेंस न्यूट्रिशन देंगे या आप उसको मिनरल मिक्सचर दोगे या आप उसके लिए डाइट कंप्लीट प्रोवाइड करोगे, तो जो जानवर है वो आपको जितना उसका पोटेंशियल है उतना ज्यादा दूध दे पाएगा। तो in short, that is the genetic potential of animal. So we can maintain that genetic potential by providing them a silage. And what is the food cost ratio? Food cost ratio को सीधी लैंग्वेज में ये कहा जा सकता है कि
आप जितना उनको खाना खिलाते हो, उनको आप जितना कॉन्सेंट्रेट खिलाते हो, उनको आप जितना मिनरल मिक्सचर खिलाते हो, उसका कितना खर्चा आता है और उसका मिल्क का प्रोडक्शन कितना आता है। अगर आपका मिल्क का प्रोडक्शन कम आ रहा है और आपका खर्चा ज्यादा आ रहा है तो नेचुरली एफसीआर रेशियो आपका ये क्या होगा कि अगर आप उसको 10 रुपए का खाना खिला रहे हो और 12 रुपए का वो दूध दे रही है तो 2% का ही आपको फायदा है। अगर आप इसको 100% में कन्वर्ट करोगे तो ज्यादा 20%। तो इट शुड बी मोर देन 50 to 55%। मीन अगर आप उसको 10 रुपए का खाना खिलाते हो तो उसने 15 से 20 लीटर तक अगर दूध देता है वो जानवर, तो वो आपको फायदेमंद साबित रहेगा। कोई भी बिजनेस का अगर आप कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखते हैं तो जानवर के इसके कंसिडर करोगे तो आप इसको एफसीआर रेशियो कहते हो, फूड कॉस्ट रेशियो। तो साइलेज इज ए कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइम इफेक्टिव। एक बार अगर आपने साइलेज बना लिया तो मैंने पहले भी कहा था कि ये 24 महीने तक ड्यूरेबिलिटी होती है, तो आप इसको 24 मंथ्स यू कैन स्टोर इट एज ए इन गुड पोजिशन। एंड व्हाट इज द कॉस्ट इफेक्टिवनेस मीन्स, अगर आपको एक ही दिन में इसका मशीन से कट करके इसका पैक करके रखने के लिए ज्यादा 1 एकड़ के लिए आपको 8 मेन लेबर की जरूरत होती है। तो आपने अगर उसको 500 भी पकड़ लिया तो 4000 रुपए आपका लेबर का कॉस्ट होगा, और जो भी आपका मशीनरी और इसके सारे इसके लिए रेंट देना पड़ेगा वो अगर जोड़ दिया आपने तो उसका मैं आपको एक शॉर्ट में इकोनॉमिक्स बता देता हूँ। 1 एकड़ आपके पास अगर जमीन है तो 1 एकड़ में आपको 25 से 30 टन की रॉ फॉडर की कटिंग्स मिलती है। मतलब आपको 25 से 30 टन की रॉ फॉडर आपके पास अवेलेबल होती है। अगर आपने उसमें 25 टन की 2000 रुपए से भी कॉस्टिंग पकड़ ली तो तकरीबन आपके पास 45 से 50,000 की फॉडर मिलती है, और इसमें आपको 5 से 6000 की लेबर कॉस्ट अगर जोड़ दिया आपने तो 55 से 60 मैक्सिमम 60,000 में आपको 30 टन का रेडीमेड साइलेज अवेलेबल होता है, जो कि आप 2 साल तक यूज कर सकते हो। इसका फायदा यह होता है कि एक ही दिन में अगर आपने काट लिया तो आपका जो लैंड है वो एक ही दिन में खाली हो जाएगा। नेक्स्ट प्लांटिंग के लिए आपको लैंड एक दिन में खाली होके मिल जाएगा। दूसरा एक है कि इसमें 0% वेस्टेज होता है, क्योंकि आपने जिस दिन ही काटा है उस दिन आप उसको रैप करके स्टोर कर सकते हो। अब इसमें होता क्या है कि उसमें आपको 850 से 900 केजी पर मीटर क्यूबिक से वो मशीन उसको प्रेस करती है। इसके कारण इसका एक फायदा होता है कि आप जो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे की फोटो में कितना कंप्रेस किया हुआ बेल है। अगर आपकी 1 एकड़ की जो फॉडर कटी हुई है वो आप उसको 15/20 की जो एरिया होता है उसमें आप उसको 15/20 फीट का एरिया में आप उसको फिट करके रख सकते हो। तो आपकी जो स्टोरेज स्पेस है वो बहुत कम लगती है। इसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस बहुत इफेक्टिव होता है कि आपके इसमें लेबर कम लग जाएंगे, आपका जो जमीन है वो बहुत जल्दी खाली हो जाएगा। दूसरा ये है कि आप इसमें फॉडर का बिल्कुल लॉस नहीं होता, क्योंकि जिस दिन आप उसको कट करोगे उसी दिन का मॉइस्चर उसी दिन का वेट जो है वो आपको 24 मंथ्स के लिए एज इट इज मेंटेन रख सकते हैं आप। तो इसकी जो एक एग्जैक्ट स्टेज होती है वो कौन सी होती है मैं आपको बताऊंगा। यू कैन सी इन दैट पिक्चर, हम इसको मिल्की स्टेज जो होती है, जो डब स्टेज होती है, उसमें ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी होती है। एज इट इज उसी टाइम कट करके उसको चॉप करके मशीन से उसका साइलेज बनाया जाता है। तो आपकी जो ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी की स्टेज होती है वो आप 2 साल के लिए यूज कर सकते हो। दैट इज द मेन ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो पहले जो हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्टेशन में या अपने स्टोरेज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो नाउ यू कैन सी हाउ दैट बंडल्स वी कैन स्टोर इन ए स्मॉल व्हीकल और वी कैन ट्रांसपोर्ट इजीली। So this can be bridge a gap between field efficiency to a poor nutrition, and it will be easy for transportation. So what will be the result of these all operations? So milk yield increase up to 2 to 3 liter, and it will improve your fat and SNF content. SNF means solid not fat, and it will give you more net profit, क्योंकि आपका जो साइलेज अगर आप फीड करते हो नॉर्मल अपने ट्रेडिशनल वेज के साथ कंपेयर किया, उसका बाद में इकोनॉमिक्स में मैं आपको ये बताऊंगा। तो इन शॉर्ट अगर आपने जानवर को नॉर्मल ट्रेडिशनल वेज से आप खाना खिलाते हो तो 35 से 40 केजी ये खाना लगता है एक जानवर को, अगर उसकी वेट है 300 to 350 केजी की।
अगर आप साइलेज खिलाते हो तो साइलेज खिलाने का आपका ये होता है 15 से 20 किलो। तो वी विल एक्सप्लेन in next slide. It is good to see in next slide. So basically what will be the product specification, I will give you this brief idea. तो बेल साइज होता है, आपने जो अभी बेल देखा था व्हाइट कलर का, उसकी साइज जो होती है, हाइट एंड विड्थ होती है उसकी 50 बाय 50 सेंटीमीटर की। डेंसिटी जो होती है बेल की, जिसका कंप्रेशन रेट हम कह सकते हैं, वो कंप्रेस किया जाता है 850 टू 900 केजी पर मीटर क्यूब के प्रेशर से। जो डायमीटर होता है वो बेल का, वो होता है 500 mm। जो हाइट होती है वो ऊपर ही जो है उसको हमने यहाँ पे एलोबरेट किया हुआ है। जो एवरेज वेट होता है बेल का, डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल यू आर यूजिंग टू मेक ए बेल। तो अगर आप इसमें शुगर केन टॉप यूज करते हो तो उसका वेट थोड़ा कम आएगा। अगर आप इसमें मेज या आप नेपियर ग्रास या जायंट बाजरा यूज करते हो तो उसका वेट थोड़ा ज्यादा आता है। साइज इट विल बी द सेम, बट वेट विल बी द वेरी, डिपेंड्स अपॉन मटेरियल यू आर गोइंग टू यूज इन दैट बेल। So that will be the 50 to 70 kg, depends upon your material, means raw material you have use for silage। तो एक्सटर्नल रैपिंग जो होती है उसमें हम यूज करते हैं 250 mm साइज का रैपिंग पेपर होता है। ये जो यूवी प्रोटेक्टेड पॉलिथीन शीट होती है, इसका जो मटेरियल यूज किया होता है वो हम यू कैन यूज इट मल्टीप्लाई बेवेज बिकॉज इट इज अ रिसाइक्लेबल, दैट इज पॉलीप्रोपिलीन मेम्ब्रेन। एंड इंटरनल रैपिंग जो होती है 520 mm की होती है। स्टोरेज कैपेसिटी हमने पहले भी बताया है कि 24 मंथ्स की होती है। सो अगर हम इसका प्रोडक्शन होगा, आप इसका थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स देखें, अगर इसमें हमने मार्केट का एनालिसिस का मैंने पहले बोला था कि आप इसका मार्केट की एनालिसिस की अगर बात किया जाएगी तो इन शॉर्ट अगर हमने टोटल मार्केट की साइज देखी, उसमें टारगेट एरियाज कंसिडर किया, उसमें हमने अगर फार्मर्स को सर्विस भी प्रोवाइड करना चाहा, तो इसका इन शॉर्ट हम एक 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 एक्सप्लेन करते जाएंगे अभी। सो महाराष्ट्र हैविंग 13.18 मिलियन कैटल एंड बफेलो एंड 6.24 मिलियन गोट पॉपुलेशन। तो इसमें हमने अगर हम अपना कुछ टारगेट एरिया, स्पेसिफिक एरिया में हमने टारगेट किया कि इतना एरिया हम कवर करेंगे पहले साल में, 2 साल में, 3 साल में, तो पहले हमने इसके लिए कुछ टारगेट एरिया आइडेंटिफाई किए हुए हैं। उसमें हमने पुणे है, नासिक है, ठाणे है, मुंबई आउटस्कर्ट्स है। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स है, इसको हमने पहले टारगेट एरिया कंसिडर किया है। बाद में हम इसको आगे एक्सटेंड करने की कोशिश में है, अभी भी है और कर रहे हैं। सो इसमें ये जो हमने सेल्स के लिए टारगेट एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं, हम इसके साथ फार्मर को हमारी जो मशीनरी की सर्विसेज है वो भी प्रोवाइड करते हैं। मशीनरी सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ रेंट, अगर किसी फार्मर को मशीनरी चाहिए तो हम उससे रेंट देके उसको मशीनरी प्रोवाइड करते हैं। सो सर्विसेबल मार्केट एरिया भी उसमें होता है। सो इट विल बी द शॉर्ट मार्केट एनालिसिस यू कैन से। So what is our unique value proposition? So ये जो है at the right hand side you can see the compactor in green color. So we are using advanced compactor machine that will be the very easy, that will be the very good because the compression rate is high. So that you can add exactly at right corner you see that base. तो इतना मशीन से कॉम्पैक्ट होता है कि इसमें एयर टाइट होता है, वाटर टाइट होता है। ये आप उसमें धूप में रख सकते हो या तो बारिश में भी रख सकते हो, उसमें उसका कोई असर नहीं होता है अगर धूप में भी हो या बारिश में भी हो। सो दिस इज द चॉपिंग मशीन यू कैन सी इन द मिडल ऑफ स्लाइड। सो दिस 4 लेबर कैन मेक ए क्रश ऑफ ऑल 1 acre area of maize. So 6 people can cut 1 acre of maize in a day and 4 people can chop. So around 8 to 10 people make a chopping of all 1 acre maize in a day, in a 8-hour working day. You can say in a day 8-hour working hours. So this you cannot see here because this is a very small area. We send our prepared silage to laboratories to check the nutrient, and we are providing this lab report to farmers also because they can get the idea what is the crude protein, what is the crude fiber, what is the protein percentage, what will be the sugar, what will be the ash. It depends upon 8 to 9 traits we are checking for every lot. So you can see here at the left corner, so exactly we cut 0.5 mm from the ground
So that will be the very negligible amount of fodder can remain in the soil surface. We use that culture. Rumiform is a good MNC. We are using Rumiform culture for making a silage, and this is our final product. Sorry, sorry. Exactly at the right corner, you can see the silage bale. We have make a small structure. So competitive analysis. सो ट्रेडिशनल वेज से कुछ लोग साइलेज बनाते हैं, कुछ लोग बैग में यूज करके साइलेज बनाते हैं, कुछ लोग पीट्स बनाते हैं. सो कंपैरिजन हमने यहाँ पे कर रखा है. एक तो हमारा बेल साइलेज जो है, बैग साइलेज है, पीट साइलेज है, और ट्रेडिशनल डायरेक्ट मेज की फीडिंग है. तो उसमें क्या होता है, वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे इसमें. अगर हमने 1 ईयर की एक अगर चेक किया, अवेलेबिलिटी चेक की, 365 डेज फॉर अवेलेबिलिटी, तो बेल साइलेज कैन बी अवेलेबल अप टू any time of year, any month of the year. So bag silage it will not available because they cannot produce in a rainy season. Pit silage, yes, pit silage can be available up 360 days in a month, 365 days in a year. Green maize will be not available because water scarcity may be in some areas. So 6 to 8 months there will be the availability of green maize, but for not for 12 months. So for handling, it will be the easy. In case of bell, it will be the very easy for handling. Back silage it is difficult because human being cannot lift a weight of 150 to 200 kgs, and back silage it will be the weight up to 500 to 1 ton also. So that is very difficult to transportation. Peat silage you cannot transport from one place to another place. That will be the peat. It will be the constant in a one place only. Green maize, yeah, green maize you can handling, but that is very difficult because you have to cut, you have to make a small bundles, then you have to make, shift in a tractor, in a trolley, then you have to transport from another one place to another place. That is also very difficult task. सो इन केस ऑफ लेबर, सो हमने एक बार उसमें भी डिस्कस किया था कि इसमें लेबर कॉस्ट कम लगता है, वेरी लेस. बैक साइलेज के लिए बहुत ज्यादा लगेगा क्योंकि ये तो उठाने में बहुत ज्यादा हेवी होता है. उसको आपको कट करके इधर से उधर वो सारी चीजें बढ़ती है इसमें बैक साइलेज में. पीट साइलेज एक जगह पे होता है, उसमें उसलिए उसकी लेबर कॉस्ट कम हो जाती है. बट ग्रीन के लिए, ग्रीन मेज के लिए फिर आपको लेबर की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ेगी. अब ड्यूरेबिलिटी की बात अगर किया जाए तो यहाँ पे बेल साइलेज जो होता है वो 24 मंथ्स अवेलेबल होता है. बैक साइलेज जो है ज्यादा 6 से 9 महीने अवेलेबल रहेगा. पीट साइलेज आपको 12 महीने अवेलेबल रहेगा क्योंकि वो आपके फार्म एड पे ही मिलेगा आपको, क्योंकि वहां पे आप उसको बना सकते हो. और ग्रीन मेज जो है 2 या 3 दिन तक काटा हुआ मेज ज्यादा से ज्यादा ग्रीन रह सकता है, उसके बाद वो अपने आप ड्राई होने लगेगा. अब इसमें फंगस की कंटामिनेशन का चांसेस हमने देखा, मैंने उधर भी हमने एक्सप्लेन किया था कि इसमें वेरी रेयर ऑफ चांसेस, बिकॉज यहाँ पे कोई चांस ही नहीं, क्योंकि इसमें एक तो वाटर टाइट होता है, एयर टाइट होता है, तो इसलिए फंगस के कॉन्टामिनेशन होने के चांसेस बिल्कुल ही कम है, या तो ना के बराबर है. अब बैक साइलेज में ह्यूमन एरर है, उसमें कट होने के चांसेस है, तो यहाँ पे ज्यादा होते हैं. पीट साइलेज में ज्यादा होते हैं. और ये रेनी सीजन में अगर मेज कट करके आपने रख दिया. यस यस प्लीज, somebody having some issues or any queries? Hello. So shall I continue? Hello. 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 Yes please. येतोय आवाज? आवाज येतोय, कंटिन्यू येतोय सगळ्यांना? येतोय बोला. ओके ओके. तो रेनी सीजन में आपको अगर देखा कहीं ना कहीं इसमें एक जो फंगस की ग्रोथ होती है, व्हाइट कलर की फंगस की ग्रोथ आपने देखी होगी, तो रेनी सीजन में मेज पे आपको फंगस की कॉन्टामिनेशन विजिबल नेकेड आई से दिख सकती है. अगर ड्राई मैटर की बात किया जाए, ड्राई मैटर मीन्स अगर आपके पास कोई भी चीज है उसमें से कितने परसेंट मॉइस्चर है, कितना परसेंट वो उसमें ड्राई मैटर अवेलेबल है. तो बेल साइलेज में आपको 35% ड्राई मैटर मिलेगा, बैक साइलेज में 35% मिलेगा, पीट साइलेज में भी 35 मिलेगा. बट ग्रीन मेज में इसकी 25% ही होगा क्योंकि वो मॉइस्चर ज्यादा रहेगा उसमें. प्रोटीन इसमें कितना परसेंटेज आपको मिल सकता है, तो 8 to 9% में मिल सकता है. बैक साइलेज में भी प्रोटीन कंटेंट उतना ही रहेगा, बट पीट साइलेज में इसकी कम हो जाती है प्रोटीन परसेंटेज, और ग्रीन मेज में उसकी 7 to 8 होती है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपेरिजन में,
यहाँ पे अगर 7 to 8 है तो यहाँ पे 2% प्रोटीन आपको अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है। अब डेली मॉइस्चर लॉस है तो वहां पे आपको एयर टाइट है, वाटर टाइट है, तो मॉइस्चर लॉस होने का कोई चांस नहीं है, तो मॉइस्चर लॉस बिल्कुल जीरो है। बैक साले में होता है, पिट साले में भी नहीं होता है। और ग्रीन मेज में डेली आपकी 50 to 20% मॉइस्चर की लॉस हो जाएगी। अब हैंडलिंग लॉस की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे हैंडलिंग लॉस कुकरी क्रॉप मतलब उस बेल साइलेज में कोई नहीं है, बैक साइलेज में हो जाता है, पिट साइलेज में 20% तक हो जाता है, यहाँ पे 50 to 20% तक हो जाता है ग्रीन मेज के कंसिडरेशन में। अब फंडिंग यहाँ पे कुकरी क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए गारंटी नेड की अप्रूव हो गई है। जो आरके विवाह रफ्तार की एक जो स्कीम थी उसमें अभी अप्रूवल आ गया है, तो दैट इज आवर फंडिंग स्टेटस मीन्स। सो अगर ये इसका सोशल इम्पैक्ट अगर हमने काउंट किया तो सोशल इम्पैक्ट में हम ये कह सकते हैं कि स्टार्टअप प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू द अनएजुकेटेड पीपल स्पेशली मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ स्मॉल हेल्प ग्रुप। तो 25 to 26 फैमिली अब तक हमने इनको काम दिया है, तो इनकी डेली जो रोजी रोटी होती है वो अपने पास कुछ फार्म पे काम करते हैं कटिंग का, कुछ साइट पे काम करते हैं, कुछ लोग ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हैं, कुछ लोग मार्केटिंग के लिए काम करते हैं। तो तकरीबन 1-2 साल से हम काम कर रहे हैं, तो 25 to 30 ये साल तक हमने 30 फैमिलीज को इसका फायदा हो गया है एज ए एम्प्लॉय की तरह। बाकी का फार्मर्स का वो अलग है। अब साइलेज इज अ बैलेंस्ड डाइट, एक्सप्लोर जेनेटिक पोटेंशियल एंड मेंटेन्स एफसीआर रेशियो। वी हैव डिस्कस दिस टॉपिक ऑन प्रीवियस स्लाइड्स आल्सो। तो स्टार्टअप गिव्स वर्क टू द लॉजिस्टिक पर्सन। तो जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पास व्हीकल्स आते हैं, उनके लिए कुछ जो उठाने वाले लेबर आते हैं, उसके बाद जो लेबर वहां से फिर फार्मर के पास में लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, उनको भी रेगुलर बेसिस पे इसकी ये मिलती है, उनको पैसे डेली बेसिस पे मिल जाते हैं। तो ये जो है लॉजिस्टिक लोगों के लिए भी काम देता है, जो लेबर है उनको भी काम मिल जाता है। तो दोनों तरह से जो सोशल इम्पैक्ट इसमें बढ़ता है। साइलेज इज अ बैलेंस डाइट, एक्सप्लोर जेनेटिक पोटेंशियल, मेंटेन एफसीआर रेशियो, सॉरी इट हैज रिपीटेड एक्चुअली। प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ फॉडर फ्रॉम मार्जिनल फार्मर्स फील्ड से हम इनका जो फॉडर होता है, रॉ फॉडर, हम उनको प्रोक्योर करते हैं, तो उनको एक श्योरिटी मिल जाती है कि 1 एकड़ की अगर उन्होंने मेज की प्लांटिंग किया तो उसमें से जो 25 से 30 टन की मेज की जो उपज होगी वो उनको एक श्योरिटी मिल जाती है कि somebody will come and that will be the cookery crop science that can collect for every 3rd month. So that will use insurity to farmers, so they get the exact benefit from our company. So it will be the contract farming exactly. So in a 12 months we can give, farmer can give us 3 crops और उनको हम एक एग्जैक्ट अमाउंट ये करके देते हैं, फिक्स करके देते हैं साल के फर्स्ट मंथ में ही, कि आपको इस बार की जो फसल आएगी उसमें से इतना % अगर आप इतना दे सकते हो, तो उसको एक क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है कि इतना टन की अगर मिल जाएगी तो एक फॉर एग्जांपल उसको 2000 रुपए टन से हम उनसे प्रोक्योर करते हैं। तो फार्मर को एक श्योरिटी मिल जाती है कि अगर अपना मेज है जो 25 टन आ गया तो 50,000 आपने फिक्स हो गए, जो कि हमें मिलने वाले आफ्टर 3 मंथ्स आफ्टर कटिंग ऑफ आवर मेज और आफ्टर कटिंग ऑफ आवर अदर जायंट बाजरा हो या कोई भी चीज, मगर अगर वो जो उगाते हैं उसके लिए एक रेट हम फिक्स करते हैं, डिपेंड्स अपॉन क्रॉप टू क्रॉप। फॉर ज्वार इट विल बी द 1800, फॉर मेज इट विल बी द 200, फॉर शुगर कैन टॉप इट विल बी द 1500, डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप। हम उनको एक फिक्स अमाउंट देते हैं, साल भर अगर वो हमारे पास सप्लाई करते हैं तो उनको साल भर हमारी तरफ से हम उनको पैसे प्रोवाइड करते हैं। अभी हमने देखा था कि इसमें मिल्क बढ़ता है, तो कितना बढ़ता है, डेली 2 या 3 लीटर तक की आपकी बढ़ोतरी मिलती है। अब मिल्क बढ़ेगा तो नेचुरली है कि फैट और एसएनएफ आपकी कम हो जाएगी, लेकिन इसमें फायदा ये है कि हमने जो देखा था कि उसमें आपको अवेलेबल प्रोटीन जो ज्यादा मिलता है उसके कारण आपकी फैट और एसएनएफ बढ़ जाती है। तो अल्टीमेटली अगर 2 या 3 लीटर की आपकी मिल्क में इंक्रीमेंट मिलती है और फैट और एसएनएफ मिलता है, अगर इसकी नेशनल एवरेज अगर देखा आपने 35 फैट और 75 एसएनएफ देखा, तो एवरेज होता है आपकी 25 रुपीज से 32 रुपीज तक। अगर आपका 3.5 से लेकर 3.6 तक की फैट बढ़ा
और 3.7 से 7.5 से 7.6 भी ऐसे ने बढ़ा, तो डेली आपके इसमें 1.5 से 2 रुपीज की 1 लीटर के लिए बढ़ोतरी मिलती है। अगर आपने देखा कि 10 फार्मर का डेली दूध जाता है एक गाय का, तो उसमें उसकी बढ़ोतरी मिलती है 12 या 13 लीटर की, मतलब 2 लीटर अगर बढ़ जाए और उसके पर लीटर के हिसाब से 1.5 रुपया बढ़ गया, तो उसके 15 से 20 रुपए पर लैक्टेशन, मतलब पर मिल्किंग के बढ़ते हैं, और सेकेंड के 30 रुपए, मतलब 60 रुपए ये बढ़ गए, और उसके 60 रुपए दूध के बढ़ गए, तो 120 रुपीज उसके बढ़ते हैं ओनली अगर आप उसको साइलेज फीड करते हैं। ये आपकी इंक्रीमेंट ओनली इन टर्म्स ऑफ मिल्क है। लेकिन आप इसको अगर 50% ही फीड करते हो, तो आपकी जो फॉडर की कटिंग है, मतलब फॉडर की जो कॉस्ट कटिंग है, दैट विल बी ऑटोमेटिकली रिड्यूस अप टू 50%। तो उसमें आपके फॉडर के लिए अगर आप उसको 200 या 250 रुपए का खाना खिलाते हो डेली, तो 100 रुपीज में अभी खिला रहे हो, क्योंकि आप उसको 50% ही डाल रहे हो। साइलेज अगर आप उसको फीड कर रहे हो, तो 50% साइलेज में इसकी जो एपेटाइट है वो कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि इसमें जो है आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, आपकी अवेलेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि ये जो है 65 to 75% ऑलरेडी डाइजेस्टेड फॉडर आप उसको दे रहे हो। तो आपके इसमें फायदा इतना हुआ कि 120 रुपीज आपकी मिल्क की जो बढ़त हुई है उसमें हुआ है, और दूसरा जो है कि कॉस्ट जो कटिंग हुई है आपकी, क्योंकि आप उसको आधा ही खाना खिला रहे हो, तो इसमें तकरीबन आपको डेली 200 से लेके 250 रुपीज तक की बचत होती है। बचत का ये है कि आपका डेली उतना फायदा हो रहा है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो उसका 250 रुपए अगर उसका बचता है, तो इसका मतलब है 250 रुपए उसको फायदा हो गया। साइलेज प्रोडक्शन एट फार्मर्स फील्ड्स सेव्स फार्मर ट्रांसपोर्टेशन टाइम्स एंड एक्सप्लोर जेनेटिक। अगर आप इसको फार्मर के पास ही जाके बना के देते हो, तो फार्मर का इसमें फायदा ये होता है कि उसको ट्रांसपोर्टेशन करने का जो खर्चा आता है वो बच जाता है, उसको इधर उधर हिलाने के लिए जो टाइम जाएगा वो सारी चीजें उसकी बच जाएगी। अगर इसमें आपने एक ही दिन में ये काटा है, तो इसमें फायदा ये हो जाएगा कि आपकी जो बची हुई लैंड है, क्योंकि अगर आप डेली काट के खिलाते हो, तो 1 एकड़ लैंड खाली करने के लिए आपको तकरीबन 15 से 20 दिन, या अगर आप उससे भी कम जानवर है आपके पास, पांच जानवर से कम अगर है, तो उसको आपको 1 महीना 1.5 महीना भी लग जाता है, क्योंकि वो 1 एकड़ की फसल आपको काट के डेली खिलानी है। तो 1 से 1.5 महीने की आपकी जो लैंड की अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आप उसमें अगर एग्जैक्टली 90 डेज पे कट हो जाता है, तो आप उसके 4 क्रॉप ले सकते हो। वैसे अगर देखा जाए ट्रेडिशनली, तो आप उसमें ओनली 3 ही क्रॉप ले सकते हो, लेकिन फार्मर कैन इंक्रीज हिज क्रॉप रोटेशन, बिकॉज आप इसमें एक कटिंग बढ़ा सकते हो, मतलब एक क्रॉप आप इसमें आराम से बढ़ा सकते हो। ओके, तो ये सारा होने के बाद किसी भी बिजनेस में आपकी रेवेन्यू मॉडल की बड़ी अहमियत होती है। तो हम रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करते हैं? तो डायरेक्ट रिसीव कैश पेमेंट, अगर हमने हमारे साइट पे इसकी अगर सेल्स किया, तो ऑन बेसिस ऑफ कैश डिलीवरी हम, अगर ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है, तो एट द टाइम ऑफ बुकिंग 50% हम लेते हैं, और 50% आफ्टर डिलीवरी। मीन्स अगर किसी ने ई साइलेज नाम का एक पोर्टल हमने बताया है, उसमें किसी ने बुकिंग किया, तो एट द टाइम ऑफ बुकिंग ही हैज टू पे 50% एंड रिमेनिंग 50% आफ्टर डिलीवरी। मीन्स आफ्टर डिलीवरी they have to pay us remaining 50%. So we can procure our रॉ मटेरियल अगेंस्ट और मशीनरी सर्विसेज टू फार्मर। अगर किसी फार्मर के पास उसकी खुद की फॉडर है, अब मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि उसके पास 1 एकड़ की फसल हुई है, और उसको वो बेचनी भी है, और उसमें से कुछ उसको रखनी भी है। तो हम क्या करते हैं, उसकी जितनी प्रोक्योरमेंट हमें करनी है, उतना जो बचा हुआ उसके पास फसल है उसको हम बना के देते हैं, और उसको जो है हम मैनेज करते हैं कि या इसको अगर 10,000 मिलते हैं होते हैं,
तो 10,000 की हम उससे मेज खरीद के लेते हैं। तो ये हम इसमें दोनों तरह से भी काम करते हैं, क्योंकि फार्मर को हम सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, उसका रॉ मटेरियल भी परचेस करते हैं। और ये जो है दोनों तरह से काम होता है। जिसके पास अगर जानवर नहीं है उससे हम डायरेक्ट प्रोक्योर करते हैं, जिसके पास जानवर है उसको हम बना करते हैं, और उसका जो बचा हुआ फॉडर है वो उसको एज अ साइलेज फीड करता है। सो व्हाट आर द कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटेजी? पहले तो हमने क्या किया था कि एक तो हम जो कैटल और इसके फार्म्स होते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइज कैटल फार्म होते हैं, ऑर्गेनाइज गोट फार्म्स होते हैं या तबेलाज होते हैं, पुणे है, मुंबई है, नासिक है, या इसके आउटस्कर्ट्स में बड़े बड़े गोट इसके बफेलो के तबेले होते हैं, मुसलमान देश में उसको तबेला कहते हैं। तो उसमें बहुत ज्यादा जानवर होते हैं, 100, 150 to 100। कुछ कुछ तबेला हमने ऐसे भी पाए 800 to 1000 काउज एंड बफेलो होते हैं उसमें। तो उनका प्रॉब्लम ये होता है कि सिटी के नजदीक होने के कारण उनके पास उसकी खुद की इतनी लैंड नहीं होती कि उतना वो जानवरों को खिला सके, तो वो हमसे परचेस करते हैं और जानवर को एज इट इज खिलाते हैं। तो पहले हमने उनको टारगेट किया था कि वो जो है वो हमारे डेली कस्टमर हो सकते हैं, या तो उनको हम एक वीक में 2 या 3 ट्रक्स भर के उनको प्रोवाइड करते हैं। अभी दूसरा एक ऑप्शन हमने इसमें आइडेंटिफाई किया था कि जो बाजार होते हैं या मार्केट होते हैं या मंडीज होते हैं, उसमें जो जानवर खरीदे बेचे जाते हैं, तो उस टाइम जानवरों को खाने के लिए डेली बेसिस पे बहुत चारा लगता है, तो उसको हम डायरेक्ट टारगेट करते हैं। वहां पे जाके हमारी एक व्हीकल खड़ी करते हैं, तो जो सेलर का बायर होते हैं वो हमारे यहाँ से कलेक्ट करके जानवर को खिलाते हैं। अब पहले हमने एक बार जिक्र किया था कि हमने एक इंसान यहाँ पे साइलेज कर सकते हैं, वहां से साइलेज वो कर सकता है, वहां डिलीवरी हम उसके जो एड्रेस आया हुआ है उस पे हम डिलीवरी भी दे देते हैं। हमने कुछ डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क बनाया हुआ है, उनके पास हमारा स्टोर होता है, उनके गोडाउन में उनके पास भी प्रोडक्ट बनाया जाता है, basis of some are giving some commissions to them. So, and one more option is there. So we are providing our machinery to farmers on the basis of rent. So this is now time to make a thank you. Thanks all of you to listen our presentation for silage. So you can 54 at Sultanpur, Borivali, in Cunnar, Pune. Pin code is 412411. Our mail ID agricos.man28@gmail.com. Our website, you can visit our website, Pupudi Crop Science business site. So you can note our number, my personal mobile number 970-008. So that is now topic is open for discussion. So you can ask your Thank you, queries. Mr. Dhyandev Adkari. Now I would request all the participants to unmute and raise their questions, to unmute their mic and raise their questions one by one. You can also write your questions in the chat box. I will also request once again all the participants to unmute their mic. To mute their mic, unmute only once you raise your question. हेलो Yeah, please go ahead. सागर लखोंडे बात कर रहा हूँ मैं। Yes, please. Yes. साइलेज आप पहले साइलेज गाय को देने का है, तो एक दिन में कितना किलो साइलेज देने का है? हाँ हाँ, मैं आपको बताता हूँ। एक अगर जानवर की वेट के बेसिस पे होता है, इसका अगर 350 to 400, तो आप इसको 15 से 20 केजी तक साइलेज फीड कर सकते हो। अगर आपके पास छोटा सा गोट का बछड़ा है, तो उसका वेट अगर आपके मैं कहता हूँ कि 15 या 20 किलो है, तो उसको आप 500 स्टार्ट कर सकते हो। आपका 70 to 80 केजी है, उसको आप 3 से 4 केजी तक दे सकते हो। डिपेंड्स अपॉन योर एनिमल वेट, यू हैव टू प्रोवाइड मतलब एक दिन में 15 किलो तक चाहिए। 20 केजी तक आप दे सकते हो, 15 to 20 केजी, डिपेंड्स अपॉन योर वेट एंड डिपेंड्स अपॉन योर एनिमल एपेटाइट। अगर बड़ा एनिमल है, उसकी वेट ज्यादा है,
उसको 22 किलो भी दे सकते हो, 25 तक भी दे सकते हो। बट एवरेज अगर इंडिया की हमने इसका एक एनालिसिस, एवरेज गाय की वेट होती है 350 से 400 केजी तक, तो उसको कर सकते हो डेली बेसिस पे। थैंक यू सर। ओके, Any other questions from participants? Please unmute your mic and raise your questions. हेलो। यस प्लीज। हाँ, आपको तो कुछ गाय वगैरह होती है ना, तो वो खाती नहीं है साइलेज, तो उसका क्या है? नहीं, क्या होता है ये ना, एनिमल को पहले हम जो ट्रेडिशनल वे से खिलाते हैं उसको हैबिट नहीं होता है, क्योंकि साइलेज जो होता है थोड़ा सा सोर होता है, जिसको हम कहते हैं ना, जैसे जो आपकी इमली होती है थोड़ा सा खट्टे खट्टे टाइप में होता है। एक दो दिन अगर उसको एक बार उसकी हैबिट बन जाती है तो अपने आप वो खाने में चालू करती है, क्योंकि वो क्या है ना, फर्मेंटेशन होने के कारण उसका थोड़ा सा टेस्ट जो है थोड़ा सा सोर बन जाता है, मतलब उसको आप कह सकते हो थोड़ा सा खट्टा बन जाता है। तो एक दो दिन उसको एक बार उसकी ये हो जाती है, हैबिट बन जाती है, तो आराम से खाती है। पहले एक दो दिन उसको तकलीफ जरूर दिखाती है, वो खाने में हिचकिचाहट दिखाती है, लेकिन उसको एक दो दिन के बाद वो आराम से खाती है। हाँ ठीक है। हेलो हेलो प्लीज। हेलो। यस हाँ सर। साहब, साइलेज यदि गाय को खिलाते हैं तो उसका कुछ दूध के साथ कोई रिलेशन है, मतलब स्मेल का? यदि कोई गाय साइलेज खा रही है, उसके दूध में साइलेज का स्मेल आता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है, ऐसे कभी नहीं होता है। अगर आपने उसको साइलेज खिलाया है तो उसका जो रेगुलर टेस्ट होगा मिल्क का, वो उतना वही हम्म। होगा। उसमें बस आप साइलेज की खिलाने के बाद मिल्क की क्वांटिटी बढ़ेगी, फैट और एसएनएफ बढ़ेगा, उसका टेस्ट नहीं नहीं, नो वो बदलेगा। नहीं, ईड के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, खाली स्मेल। नहीं नहीं नहीं, स्मेल कोई चेंज नहीं होगा। आपका जो भी खाना आप रेगुलर खिलाते थे, उस हम्म। टाइम टेस्ट या उस टाइम जो स्मेल आता था सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ओके ओके। ओके। हेलो। हाँ, हाँ सर, पूछिए पूछिए साइलेज सर। जो बनाते जो बनाते वक्त 1 टन साइलेज के लिए कितना नमक और कितना गुड़ चाहिए? 1 टन साइलेज बनाते समय आपको 3 यूज कर सकते हो। गुड़ का क्या है कि अगर आप मेज का बनाते हो तो 4 से 5 केजी तक गुड़ काफी है। अगर आप पर्ल मिलेट का बनाते हो उसमें शुगर परसेंटेज कम होता है, तो उसको 7 से 9 केजी तक आप जैगरी यूज कर सकते हो। अगर आप सॉर्गम का बनाते हो तो उसमें 5 से 6 केजी तक यूज कर सकते हो। मक्के का मेट का बनाते हैं हम लोग। मेज का बनाना है तो आपको 3 से 5 केजी काफी है, क्योंकि मेज में ऑलरेडी आपके शुगर की परसेंटेज अच्छी होती है। और नमक? नमक 3 केजी मैक्सिमम। तो ज्यादा खट्टा नहीं होगा 3 केजी में? 1 टन के लिए बोल रहा हूं मैं, 1 टन 1000 किलो के लिए 3 केजी नमक मोर देन इनफ है आपका। चलेगा, थैंक यू सर। ओके। हेलो। यस प्लीज। हाँ सर, अगर एनिमल कम हो गए, एक या दो, और बेल बेल साइज अगर जरा 70 80 90 होगी साइज की, हम्म। तो एक बार ओपन करना किया तो कितने दिन में वो खत्म करना है आपने? आपको 8 से 10 दिन तक उसको आराम से यूज कर सकते हो। अगर आपने उसमें एक भी एनिमल है आपके पास, अगर डेली आपने 20 केजी भी खिलाया तो 4 दिन में आराम से खत्म हो जाता है आपका। ओके। और एक बात सर, दूसरी कुछ पूछना था। अगर अपन ये साइलेज बना रहे हैं
और उसमें ओपन एक बार ओपन डाला और उसको पैक किया और उसको थोड़ा सा देर हो गया, समझो आज चालू किया और वो कल भी पैक कर सकते हैं उसमें, अगर बेल साइज में बनाते हैं वो तो। नहीं, उसमें होता क्या है कि अगर आप जितना लेट करोगे उतना आपका मॉइस्चर लॉस होगा, वेट लॉस होगा, हाँ उसका बाकी का नुकसान कम होगा। लेकिन देखिए, अपना ये सारा चीज जो है वेट बेसिस पे होता है। अगर आपको हाँ उसको ड्राई करके ही खिलाना है तो आप ट्रेडिशनल वेज से भी खिला सकते हो। साइलेज इसमें बनाना इसलिए है कि आपका जो वेट है एज इट इज रहेगा, उसमें आपका कोई ना तो न्यूट्रिएंट लॉस हो रहा है ना तो मॉइस्चर लॉस हो रहा है। साइलेज का फायदा यही है कि आप उसको जिस दिन काटोगे वो स्टेज आपको 24 मंथ तक मेंटेन रख सकते हो। अगर आप उसको सुखा के कर रहे हो तो आप उसका वेट लॉस कर रहे हो। वेट लॉस का मतलब है आपके चारे का जो न्यूट्रिएंट का लॉस है वो भी उसके साथ हो जाएगा। सर, थैंक यू। तो बाकी है वो, उसने तो फाइनलाइज किया है, वो मेल कर देंगे। हाँ हाँ। Any other questions from श्योर participants? मैं फिर से एक बार जाता हूँ। So once again, I would like to thank Mr. Dhyandev Atkari. Your presentation provided us with deep insights. Many thanks for sharing your invaluable experience in the field of agriculture. Participants really got the benefit from your talk. And at last, I would like to thank everyone for sparing their valuable time with us. Our next webinar will be on Thursday, 5th of November 2020. Thank you. You can थैंक leave the session now. Thank you. यू, थैंक्स। Thank you. थैंक यू सर। थैंक थैंक यू। थैंक यू। ओके ओके ओके। त्यांना काय त्रास होता कुठलं कॅन्सर होता हेलो।
दोबारा से ज्वाइन करनी पड़ेगी मीटिंग, है क्या लिंक?